أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ حقیقت مومنوں، سورہ یاسین آیت 12 کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے درج کر لی ہے لوح محفوظ میں۔ آج کی یہ وعظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اور کیا اسماعیلی جو دعا ہے وہ نماز ہے یا نہیں ہے۔ شروعات اللہ ہے یا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بلانے میں آئے گا جنہوں نے 60 سال تک نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن ان کی ایک بھی نماز قبول ہوئی نہیں ہوں گی۔ تو جو ساتھ میں صحابہ تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، جب انہوں نے 60 سال تک نماز پڑھی ہوں گی تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو انہوں نے رکوع برابر نہیں کیا ہوگا، یا تو انہوں نے سجدہ برابر نہیں کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور فرمان کے اندر فرماتے ہیں، نماز جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی چابی وضو ہے۔ اگر ہم ہمارے اسماعیلی طریقہ کے اندر نظر کریں تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہمارے طریقے کے اندر وضو کا کانسیپٹ جو ہے وہ دھیرے دھیرے لپت ہوتے جا رہا ہے، حالانکہ پہلے سے ہی وضو کا پراپر کانسیپٹ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اور جہاں تک بات رہتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اس کو کہتے ہیں نماز کے اندر جہاں پہ ہم ہمارا آدھا جسم جس کو جھکاتے ہیں اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ تو دعا کے اندر رکوع تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے لیے بھی ہمارے جماعت خانے کے اندر پلیس نہیں ہے، اور اگر جگہ ہے بھی تو بھی ہم آج کل سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ حقیقتی مومنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، اس کا مفہوم خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 33 کروڑ 35 لاکھ 54,432 نیکیاں دیتا ہے۔ 33 کروڑ 35 لاکھ 54,432 نیکیاں ایک نماز کے بدلے میں مسلمان کو دی جاتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آخرت کے اندر جو حساب کتاب ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ہمیں، وہاں اس کی شروعات میں
हमने जो आयत पढ़ी थी सूरह यासीन के अंदर, अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन हम एक दिन मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। मुर्दों को अल्लाह ताला उठाने वाला है, शरीर के साथ उठाने वाला है। और ये कोई सिंबॉलिक बात नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि अल्लाह खुद बताता है। और एक आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, उसका मफहूम खुलासा ये है कि हम मुर्दों को जो जिंदा करेंगे उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सब अपनी अपनी कब्रों से उठ के आ जाओगे कयामत के रोज। कयामत के रोज तुम सब अपनी अपनी कब्रों से उठ के आ जाओगे, अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आओगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कैसे निकल आओगे? जैसे कि ये जमीन जो है वो मुर्दा पड़ी हुई है, उस मुर्दा जमीन पे हम आसमान से बारिश बरसाते हैं, और जैसे ये मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, उसी तरीके से तुम सब एक रोज कब्र में से उठ उठ के हमारे पास आओगे। तो कयामत बरहक है। हम भी दुआ के अंदर पढ़ते हैं सूरह फातिहा के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला कयामतना दिवसनो मालिक छे। तो कयामत बरहक है, और वहां पे पैसों में हिसाब नहीं होगा, नेकियों में होगा। तो नेकी जो है नमाज पढ़ने से करोड़ों में हमें नेकियां मिलती हैं। तो नमाज के लिए वजू होना फर्ज है, नमाज के लिए रुकू में जाना फर्ज है, नमाज के लिए सजदे में जाना फर्ज है, और नमाज वो पढ़ना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, जो हजरत अली पढ़े, जो हजरत हुसैन पढ़े, जो जैनुल आबदीन पढ़े, जो मोहम्मद बाकिर पढ़े, जो जाफर सादिक पढ़े, और दुनिया के तमाम मुसलमान वही नमाज पढ़ रहे हैं। तो यहां पे यकीनन बात है कि हमारी जो इस्माइलियों की दुआ है वो नमाज नहीं है। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका मफहूम खुलासा है कि इस्लाम के अंदर कोई भी नई चीज का दाखिल करना वो बिद्दत है। इस्लाम के अंदर कोई भी नई चीज का दाखिल करना वो बिद्दत है, और हर बिद्दत जहन्नम की ओर लेके जाने वाली है। नई चीज शरीयत के अंदर लाना वो बिद्दत कहलाती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बिद्दत जहन्नम की ओर, दोज़ख की ओर लेके जाती है। हकीकती मोमिनो, जब नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी है कि यह नमाज है, और मैंने जो बताया पूरे इमाम वो नमाज पढ़ते थे। पूरे दुनिया के मुसलमान जो एक अल्लाह को मानते हैं वो वही नमाज पढ़ते हैं। तो उस नमाज की जगह पे, उस नमाज के प्लेस पे अगर हम दुआ पढ़ते हैं तो ये भी एक बिद्दत है, क्योंकि ये भी नई चीज है जो ना तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बताया है, ना ही हदीस पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है। हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए फर्ज किया गया है, और दुआ जो है वो नमाज नहीं है। और काफी सालों से जमात खानाओं के अंदर आप सुनते होंगे कि भाई नमाज आने वाली है, नमाज आने वाली है। तो जो भी वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि नमाज आने वाली है, तो मैं उनको बता दूं कि नमाज 1439 साल पहले आ चुकी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे गए थे, हम जो महराज की रात हम जो जश्न मनाते हैं
मोमिनो, ये जश्न जो है वो अल्लाह ताला का दीदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ था। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया था, उसकी खुशी में है। और सबसे बेहतरीन इनाम जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया वो है नमाज। सो नमाज तो आ चुकी है, कहीं से आने वाली नहीं है। और नमाज वही पढ़ना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हकीकती मोमिनो, और एक आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल बकरा के अंदर, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, खुशूसन नमाज की पाबंदी की और ज़कात अदा की, तो उनके रब के पास उनका सवाब महफूज है और ना उनको किसी किस्म का खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और एक आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इब्राहिम के अंदर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, मुझको और मेरी औलाद को नमाज का खास एहतमाम करने वाला बना दीजिए। ऐ हमारे रब, और मेरी ये दुआ कबूल कर लीजिए। और भी काफी आयतें हैं कुरान पाक के अंदर जहां पे अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र किया है। और अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों पे नजर करें तो कई फरमानों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने के फायदे, नमाज ना पढ़ने के नुकसानात और नमाज पढ़ना और ना पढ़ने के बीच का फर्क जो है वो बयान फरमाया है। हकीकती मोमिनो, दाखिल थशे तो ये जो हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि नमाज पढ़ने से हमारे दुनिया के तो रिस्क के जो परेशानियां हैं वो तो सोल होवे ही होवे, साथ ही साथ में आखिरत के अंदर, कब्र के अंदर और पुल सिरात के अंदर भी ये नमाज हमारा मददगार बन के सामने आती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सब जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की पाबंदी किया करते थे, और ना केवल 5 वक्त की नमाज, लेकिन नफिल नमाजें और वितर की नमाजें, हर एक नमाज की पाबंदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें, हजरत अली अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, हजरत हसन अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, हजरत हुसैन अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, हजरत जैनुल आबदीन अलैहि वसल्लम वो भी नमाज पढ़ते थे, हजरत मोहम्मद बाकिर अलैहि वसल्लम वो भी नमाज पढ़ते थे, हजरत जाफर सादिक अलैहि वसल्लम वो भी नमाज पढ़ते थे। और जो भी इस्लाम के अंदर इमाम आए हैं वो सारे के सारे जो है वो नमाज की पाबंदी किया करते थे। यहां तक कि कलाम मौला के अंदर हजरत अली अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो और ज़कात अदा किया करो। हजरत अली अलैहि वसल्लम
کلام مولا کے اندر فرماتے ہیں، جو ہم اکثر جماعت خانے کے اندر بھی پڑھتے ہیں. تو نماز کی جو فضیلتیں ہیں وہ بہت کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.